Hello students, welcome you all in this video lecture series of Supply Chain and Management of MBA third semester. I am Deepak Sharma, Assistant Professor in Department of Mechanical Engineering. Today we are going to discuss about the topic of supply chain management, that is various flows, that is the flow of cash, value and information in supply chain and management. Before starting this video, I would like to recall about previous video, that was the key issues in supply chain and management. So what was the key issues and what are their effects and parameters? Let us discuss that by giving a real life example of that. In May 2017, luxury car manufacturer BMW suffered a production stoppage of its 3 Series sedan in Germany, China and South Africa due to a supplier failure to supply the necessary steering gears. Aside from its 3 Series sedan, production of BMW's 1, 2 and 4 series were also affected. So this is a real life example of not having a good supply chain and management. Now, this incident highlights the importance of supply chain management. Effective supply chain management enables enterprise to track the movement of the raw materials needed to create product, optimize inventory level to reduce cost and synchronize supply with customer demand. Furthermore, supply chain management enables enterprise to maintain visibility over their logistics to ensure availability of materials and delivery of products to customers. Effective supply chain management also helps enterprises avoid production stoppage by identifying areas in which they are reliant on a single supplier. Now, the three key issues in supply chain and management are: first one is globalization. The globalization presents several critical supply chain management challenges to enterprises and organizations. First is to reduce cost. Across the supply chain, enterprise are moving manufacturing operation to countries which offer lower labor cost, lower taxes and lower cost of transport for raw materials. For some companies, outsourcing production involves not only a single country but several countries of different parts of their products. So this is the first key issue. Second, as companies expand sales into global market, localization of existing products require a significant change in the supply chain as companies adapt their product to different cultures and preferences. There is an inherent risk of losing control, visibility and proper management over inventory, especially if enterprise applications are not integrated. This requires managing diverse structure of data across geographies effectively. The second key issue is the fast changing market. Now, according to EDU CBA, consumer behavior is affected by cultural, social, personal and psychological factors that are quickly being changed by technology and globalization. Social media is creating new pressure for consumers to conform while putting pressure on enterprise to utilize their source of information to respond to changing preferences in order to stay interesting and relevant. Like globalization, the fast changing customer market also brings with it supply chain management challenges. First, products have shorter life cycle due to rapidly changing market demands. Enterprises are under pressure to keep up with the latest trends and innovate by introducing new products, while keeping their total manufacturing cost low because they understand that trends will not last for a long time. This also demands a flexible supply chain that can be utilized for manufacturing other products and for future products. Second, aside from new products, companies also need to constantly update product features. Enhancing product features require enterprises to redesign their supply chain to accommodate product changes. Finally, innovation presents a challenge in forecasting demands for new products. Now, the constant innovation necessitated by fast changing markets also mean enterprise will constantly have to
anticipate demand for new product. The third key issue is the quality and compliance. Aside from influencing consumer behavior, social media highlights the importance of having high quality product. According to research conducted by eMarketer, reading reviews, comments, and feedback is the top social media activity that influences online shopping behavior. Furthermore, social media has not only raised consumers' expectation of product quality but has also amplified the damage caused by product recall. Thus, enterprises are under increasing pressure to create high quality product and to create them consistently. They can do so by addressing quality of entry level of the supply chain such as raw materials procurement, manufacturing, packaging, logistic and product handling. Now, the product quality often goes hand in hand with compliance. Enterprises needs to ensure that they must meet local and international regulatory standards in manufacturing, packaging, handling and shipping of their products. Aside from passing quality control and safety tests, enterprises also required to prepare compliance documents such as permits, license, and certification, which can overwhelm them and their supply chain management system. So these are some key issues of supply chain and management. In short, एक बार मैं फिर से तीनों issues को आपके सामने रख देता हूं. सबसे पहला issue क्या था? ग्लोबलाइजेशन का issue था. दूसरा issue क्या है आपका? फास्ट चेंजिंग मार्केट का है. और जो तीसरा issue है वो है क्वालिटी एंड कंप्लायंस है. सो these are the three key issues. Now let us start this video. Now we will discuss this video under these headlines. Firstly, I would like to tell you about the prerequisite of the topic, which I have already told you. Secondly, the problem objective. Thirdly, we will discuss what is supply chain and management, as we have already discussed that what is supply chain and management. But in every video, we are going to revise it, that what is supply chain and management, various processes involved in supply chain and management. Now the various flows, cash, value and information in supply chain and management, learning outcome, research scope and references. So लर्निंग आउटकम देखिए, जनरली क्या होता है, किसी भी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया जाता है कि इस वीडियो का लर्निंग आउटकम क्या है. इट मींस व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो. सो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो you must be able to, or you will be able to learn about various types of flows in supply chain and management and their importance in effective supply chain management. अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट. तो सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट को देखिए कई तरीके से अपन, तो सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर अगर अपन सप्लाई चेन मैनेजमेंट को डिफाइन करते हैं तो इट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक फ्लो ऑफ मटेरियल्स, गुड्स एंड रिलेटेड इंफॉर्मेशन अमंग सप्लायर्स, कंपनीज, रिटेलर्स एंड कंज्यूमर्स. तो देखिए ये किसका सिस्टमैटिक फ्लो है? मटेरियल्स का है, गुड्स का है, और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट है रिलेटेड इंफॉर्मेशन का. अब इंफॉर्मेशन का पास होना बहुत जरूरी होता है. किसके किसके बीच में? सप्लायर्स के बीच में, कंपनीज के बीच में, रिटेलर्स के बीच में और साथ ही साथ कंज्यूमर्स के बीच में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इन सब का फ्लो बना रहे. अब यहाँ पर अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्लो की. बात करें तो यहाँ पर तीन टाइप के फ्लो होते हैं. पहला होता है आपका मटेरियल फ्लो, दूसरा होता है इंफॉर्मेशन या तो डेटा फ्लो, और जो थर्ड टाइप का फ्लो होता है वो होता है मनी फ्लो. तो देखिए इसको जो है इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और फंड, ऐसा भी आप बोल सकते हो. तो इंफॉर्मेशन हो गया आपका, इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट और फंड. इन तीनों चीजों का सिस्टमैटिक फ्लो होना चाहिए किसी भी इफेक्टिव सप्लाई चेन और मैनेजमेंट में. अब देखिए इस डायग्राम में क्लियरली मेंशन हो रहा है कि सबसे पहले अगर वेंडर को अपन देखते हैं तो वेंडर के बाद क्या है? सोर्सिंग है. सोर्सिंग के बाद है आपका इनबाउंड स्टोरेज या तो ट्रांसपोर्टेशन है. फिर इसके बाद आता है ऑपरेशन. ऑपरेशन के बाद आता है आउटबाउंड स्टोरेज या ट्रांसपोर्टेशन. फिर कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन आता है और लास्ट में आते हैं आपके कंज्यूमर्स आते हैं. तो ये पूरे हो गए. अगर आप बात करें तो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ए सप्लाई चेन. ये सप्लाई चेन के क्या हो गए? एलिमेंट्स हो गए. अब इस सप्लाई चेन के एलिमेंट्स में जो है फ्लो किस तरह से होता है, दैट इज इजीली रिप्रेजेंटेड बाय द एरोज. जैसे अगर आप मटेरियल के फ्लो की बात करिए तो मटेरियल का फ्लो कहां से कहां तक होता है? वेंडर से लेकर कंज्यूमर तक मटेरियल का फ्लो होता है. इंफॉर्मेशन के फ्लो की बात करिए तो इंफॉर्मेशन का फ्लो जो होता है वो टू वे होता है. टू वे होने का मतलब होता है कि आइदर इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वेंडर टू द कंज्यूमर और इट मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर टू द वेंडर. सो बोथ टाइप ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन विल टेक प्लेस.
मनी फ्लो की बात करिए तो मनी का फ्लो ऑब्वियस सी बात है कहां से कहां तक होगा, कंज्यूमर से लेकर वेंडर की ओर होगा। तो ये पूरी क्या बन जाती है, पूरी की पूरी साइकिल बन जाती है इसकी। तो इस डायग्राम को देख के बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि किस तरह से मटेरियल का, मनी का और इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है वेंडर से लेकर कंज्यूमर तक, या तो कंज्यूमर से लेकर वेंडर तक। अब अपन देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में देखते हैं, मटेरियल फ्लो के बारे में देखते हैं। तो मटेरियल फ्लो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि मटेरियल फ्लो में क्या होता है, स्मूथ फ्लो होता है। किसका होता है, आइटम्स का, कहां से कहां तक, प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक। और ये कब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कि थ्रू वेरियस वेयर हाउसेस एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स एंड रिटेलर्स। और इसमें जो मेन चैलेंजेस आते हैं वो आते हैं कि ये इंश्योर करना कि जैसे कि मटेरियल का फ्लो है वो क्या हो, क्विक होना चाहिए, बिना किसी स्टॉपेज के, थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स। अब मतलब क्या है कि अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट आया आपको मटेरियल का, तो ऐसा नहीं कि आप वहां पर डिमांड करे जा रहे हो, आपको सप्लाई ही नहीं हो रही। ऑब्वियस सी बात है कि अगर सप्लाई नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा, मटेरियल का मतलब रिक्वायरमेंट मतलब बढ़ जाएगा और उससे क्या होगा, प्रोडक्शन आपका क्या हो सकता है, इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इसका एक प्रॉब्लम आ सकता है। तो होता क्या है कि द मेन चैलेंजेस वी फेस इज इन एंश्योरिंग दैट द मटेरियल फ्लोज एज इन्वेंट्री क्विकली विदाउट एनी स्टॉपेज थ्रू different points in the chain. The quicker it moves, the better it is for the enterprise as it minimizes the cash cycle. अब ऑब्वियस ही बात है, देखिए लाइन बहुत इंपैक्ट करती है कि क्विकर इट मूव्स, जितना क्विक जो है मटेरियल का मूवमेंट होगा उतना ही बेटर होगा किसके लिए, एंटरप्राइज के लिए, क्योंकि ये क्या करेगा, कैश साइकिल को क्या कर देगा, मिनिमाइज कर देगा। साथ ही साथ क्या होता है कि द आइटम कैन ऑल्सो फ्लो फ्रॉम द कंज्यूमर टू द प्रोड्यूसर for any kind of repairs or exchange for an end of life material. Finally, completed goods flow from consumer to their consumers through different agencies. A process known as 3PL is in place in this scenario. There is also an internal flow within the customer company. अब होता क्या है कि जो आइटम का फ्लो होता है, आइटम का या तो प्रोडक्ट का जो फ्लो होता है वो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के बीच में भी हो सकता है फॉर एनी काइंड ऑफ रिपेयर्स। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको एक ब्रेजा का एग्जांपल बताया था कि अगर मान लीजिए कोई प्रोडक्ट बनाया किसी कंपनी ने और उस प्रोडक्ट में कुछ मतलब प्रॉब्लम आ रही है, तो जो कंज्यूमर है जो उसका यूज कर रहा है वो उसको क्या कर सकता है, कंपनी में वापस भी भेज सकता है। ठीक है ना। और फाइनली क्या होता है, जो कंप्लीटेड गुड होता है, मतलब जो फाइनली प्रोड्यूस्ड गुड होता है, जो बना हुआ होता है, उसका फ्लो कहां से कहां तक होता है, कस्टमर से कंज्यूमर तक होता है थ्रू डिफरेंट एजेंसीज होता है। तो ये पूरा ये जो है इसमें अपन को बताया जाता है कि किस तरह से मटेरियल का फ्लो होना चाहिए। तो एक लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा, द क्विकर इट मूव्स द बेटर इट इज फॉर द एंटरप्राइज एंड इट मिनिमाइजेस द कैश साइकिल। सो दिस इज द मेन इंपैक्ट ऑफ दिस स्लाइड। सेकंड आती है आपकी किसकी, इंफॉर्मेशन फ्लो की बात आती है। तो इंफॉर्मेशन फ्लो में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन फ्लो कंप्राइजेस द रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, परचेज ऑर्डर, monthly schedules, engineering change request, quality complaints and reports on supplier performance from customer side to the supplier. अब देखिए इंफॉर्मेशन फ्लो में क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करना, परचेज ऑर्डर बनाना, मंथली शेड्यूल बनाना, यदि कोई टेक्निकल चेंजेस करना है आपके प्रोडक्ट में या तो स्पेसिफिकेशन में चेंज करना है तो वो उसका इंफॉर्मेशन अपने पास होनी चाहिए, क्वालिटी कंप्लेंट्स होना चाहिए, या तो कंप्लेंट या रिपोर्ट है कोई भी, किसके अगेंस्ट में कंप्लेंट या रिपोर्ट हो सकती है, सप्लायर परफॉर्मेंस के बीच में हो सकती है कि जो सप्लायर का परफॉर्मेंस है वो कैसा है। तो ये जो आता है ये इंफॉर्मेशन का फ्लो हो सकता है या तो डेटा का फ्लो हो सकता है, कहां से, फ्रॉम द कस्टमर साइड टू द सप्लायर। अब अगर अपन प्रोड्यूसर साइड की बात करें तो फ्रॉम द प्रोड्यूसर साइड टू द कंज्यूमर साइड द इंफॉर्मेशन फ्लो कंसिस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ द कंपनी ऑफर, कंफर्मेशन ऑफ परचेज ऑर्डर, reports on action taken, on deviation, dispatch details, report on inventory, invoices, etc. अब देखिए अगर अपन प्रोड्यूसर से कस्टमर साइड, कंज्यूमर साइड की बात करें तो जो इंफॉर्मेशन का फ्लो होता है उसमें क्या क्या आता है, उसमें सबसे पहला आता है कि कंपनी के बारे में बताना, क्या क्या ऑफर्स प्रोवाइड कर रही है कंपनी। दूसरा, परचेज ऑर्डर का कंफर्मेशन देना, रिपोर्ट्स किसमें, रिपोर्ट्स रिलेटेड टू एक्शन टेकन कि आपने जो भी एक्शन टेकन लिया है, डेविएशन, अगर कोई डेविएशन हो रहा है तो उसकी रिपोर्ट जनरेट करना, डिस्पैच के डिटेल्स प्रोवाइड करना, इन्वेंट्री की रिपोर्ट देना और इनवॉइसेस वगैरह आना। तो ये आता है आपका प्रोड्यूसर साइड से कंज्यूमर साइड में आता है। अब अगर हमको चाहिए कि फॉर ए सक्सेसफुल सप्लाई चेन
regular interaction is necessary between the producer and the consumer. In many instances, we can see that other partners like distributors, dealers, retailers, logistics service providers participate in the information network. अब देखिए सक्सेसफुल सप्लाई चेन के लिए क्या है कि रेगुलर इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। किसके किसके बीच में? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। कई बार ये देखा गया है कि अदर पार्टनर्स जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डीलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो इसमें क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन नेटवर्क में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इन एडिशन टू दिस सेवरल डिपार्टमेंट्स एट द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर साइड आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन लूप. Here we need to note that the internal information flow with the customer for in-house manufacture is different. अब यहाँ पर क्या होता है, इसके साथ साथ कई सारे और डिपार्टमेंट होते हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर साइड में, वो भी क्या होता है, इस इंफॉर्मेशन लूप का क्या बन जाते हैं, एक पार्ट बन जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, हमें नोट करना बहुत जरूरी है कि इंटरनल इंफॉर्मेशन का क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए विद द कस्टमर, किसके लिए, फॉर इन हाउस मैन्युफैक्चर इज डिफरेंट। मनी फ्लो की बात करते हैं तो लास्ट में जो फ्लो होता है वो आपका मनी फ्लो होता है। मनी फ्लो क्या होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइस रेज्ड बाय द प्रोड्यूसर द क्लाइंट एग्जामिन द ऑर्डर फॉर करेक्टनेस। इफ द क्लेम आर करेक्ट, मनी फ्लोज फ्रॉम द क्लाइंट टू द रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर. Flow of money is also observed from the producer side to the client in the form of debit. Now, the flow of money is also observed from the producer side to the client in the form of debit notes. अब जिस तरह से इनवॉइस अपने पास आता है, इनवॉइस रेज्ड होता है बाय द प्रोड्यूसर, तो क्लाइंट क्या करता है, ऑर्डर की करेक्टनेस को एग्जामिन करता है। अब जो क्लेम है अगर वो सही है, तब क्या होता है कि मनी का फ्लो होने लगता है, कहां से कहां तक, क्लाइंट से रिस्पेक्टिव प्रोड्यूसर तक। और जो फ्लो ऑफ मनी है उसको जो है साथ ही साथ प्रोड्यूसर साइड से भी क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ डेबिट नोट्स। इन शॉर्ट, टू अचीव एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव सप्लाई चेन, इट इज एसेंशियल टू मैनेज ऑल थ्री फ्लोज। मतलब ये बहुत जरूरी है कि सभी तीनों फ्लो जो है वो प्रॉपरली क्या होने चाहिए, मैनेज होने चाहिए विथ मिनिमल एफर्ट। मतलब कम से कम एफर्ट में तीनों टाइप के फ्लो क्या होना चाहिए, मैनेज होने चाहिए। Now it is a difficult task for a supply chain manager to identify which information is critical for decision making. Therefore, he or she would prefer to have the visibility of all flows on the click of a button. अब क्या होता है कि सप्लाई चेन मैनेजर के लिए बहुत कठिन टास्क होता है कि आइडेंटिफाई करना कि इंफॉर्मेशन का जो फ्लो हो रहा है उसमें कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो क्रिटिकल है, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसीलिए क्या है कि ये सप्लाई चेन मैनेजर का एक रोल होता है कि उसकी क्या एक विजिबिलिटी होनी चाहिए, क्लियर विजिबिलिटी होनी चाहिए सभी टाइप के फ्लो के ऊपर, चाहे वो मटेरियल का फ्लो हो रहा हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन का फ्लो हो रहा हो, चाहे वो फंड का फ्लो हो रहा हो। तो इन तीनों के बारे में जो है, जो सप्लाई चेन मैनेजर है उसको सफिशिएंट विजिबिलिटी होनी चाहिए, सफिशिएंट नॉलेज होना चाहिए। अब देखते हैं कि आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक फ्लो इन्वॉल्व्ड इन द सप्लाई चेन मैनेजमेंट, we need to consider the different elements present in this flow. Thus, the different components of the flow of supply chain are described below. अब क्या होता है कि जब अपन ने देख लिया कि बेसिक फ्लो किस किस चीजों का फ्लो होता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, तो हमको क्या है कि इस फ्लो में प्रेजेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को भी थोड़ा बहुत जानकारी होना चाहिए। तो डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं वो देखिए क्या क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट होता है ट्रांसपोर्टेशन का। ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट इज नेसेसरी फॉर एन uninterrupted and seamless supply. The factors that have an impact on shipment are economic uncertainty and instability, varying fuel prices, customers' expectation, globalization, improvised technologies, changing transportation industry and labor laws. तो देखिए क्या होता है कि ट्रांसपोर्टेशन या तो शिपमेंट जो है वो किसी भी मतलब सप्लाई चेन का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन और शिपमेंट कैसा होना चाहिए, अनइंटरप्टेड ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए। मतलब कहीं भी बीच में उसमें कोई भी रोक टोक नहीं आनी चाहिए। अब जो फैक्टर्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन या शिपमेंट को इफेक्ट करते हैं उसमें आता है, सबसे पहला आता है इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी आती है, इनस्टेबिलिटीज आती हैं, फ्यूल प्राइसेस में आप देखिए कि हर बार क्या होती है, सरकारें क्या करती हैं, फ्यूल प्राइसेस को घटाती बढ़ाती रहती हैं, कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन चेंज होती रहती है, ग्लोबलाइजेशन का रूल आता है, इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजीज, नई नई टेक्नोलॉजीज का आता है, चेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्रीज एंड लेबर लॉस। तो ये सब आते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। सो दिस इज द एलिमेंट ऑफ टाइप्स ऑफ फ्लोज।
तो ये देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ट्रांसपोर्टेशन के हैं, कार, बस, एरोप्लेन, शिप्स, ये सब जो हैं दीज आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट. The major element that influence transportation should be considered as it is completely dependent on these factors for order completion as well as for ensuring that all the flow work properly. अब इसके लिए जो मेजर फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका लॉन्ग टर्म डिसीजन. अब लॉन्ग टर्म डिसीजन में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर होता है, ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर शुड एक्नॉलेज द सप्लाई फ्राइट फ्लो एंड अकॉर्डिंगली डिजाइन द नेटवर्क लेआउट. Now, when we say long-term decision, we mean that the transportation manager has to select what should be the primary mode of transportation. The manager has to understand the product flow, volume, frequency, seasonality, physical features of product and special handling necessities, if any. In addition to this, the manager has to make decision as to the extent of outsourcing to be done for each and every product. While considering all these factors, he should carefully consider the fact that the network need not to be constant. तो देखिए ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट का उसको फ्लो कराना है, किस वॉल्यूम में फ्लो कराना है, कितने बार उसको फ्लो कराना है. साथ ही साथ कोई ऐसा स्पेशल प्रोडक्ट है जिसमें स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है तो उसमें स्पेशल हैंडलिंग की जरूरत होती है. तो ये सब आते हैं आपके लॉन्ग टर्म डिसीजन में आते हैं. इसके लिए एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए कि इन ऑर्डर टू ट्रांसपोर्ट स्टॉक टू रीजनल क्रॉस डॉक फैसिलिटीज फॉर ऑल सॉर्टिंग्स, पैकेजिंग एंड ब्रोकरिंग स्मॉल लोड्स टू इंडिविजुअल कस्टमर्स, स्टॉक डेस्टिनेशंस कैन बी असेंबल्ड थ्रू कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडर्स. दूसरे आते हैं आपके लेन ऑपरेशन डिसीजन. तो लेन ऑपरेशन डिसीजन में क्या होता है कि दीज फंक्शनल डिसीजंस स्ट्रेस ऑन डेली फ्रेट ऑपरेशन. Here, the transportation manager work on real-time information on products, requirement at different system nodes and must collaborate every move of the product, that is both inbound and outbound shipping lanes, so as to satisfy their services demands at the minimal possible cost. Managers who make good decisions easily handle information and utilize the opportunities for their own profit and assure that the product is moved to them immediately whenever it is demanded, that too in the right quantity at the same time they are saving the cost on transportation also. तो देखिए लेन ऑपरेशन डिसीजन में क्या होता है कि ये डेली बेसिस में होता है कि इसमें ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर जो होता है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन और प्रोडक्ट में वर्क करता है. जैसे अलग अलग नोट्स में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अगर प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है तो ये मैनेजर को इंश्योर करना चाहिए कि राइट टाइम पे, राइट प्लेस में, राइट क्वांटिटी में जो है वो प्रोडक्ट उस तक पहुंच पाए. और साथ ही साथ एट द सेम टाइम उसको ये भी देखना है कि देयर मस्ट बी सेविंग कॉस्ट ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो. एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल, अ शिपमेंट हैज लैंडेड from a supplier who is based in New Jersey, and in the same week a product need to be dispatched to New York as it becomes available for movement. If the manager is aware of this information in advance, he would prepare everything as per the demand and the product could be shipped out immediately. देखिए जैसे कहीं से कोई प्रोडक्ट आ रहा हो, साथ ही साथ हमको किसी दूसरी जगह पे किसी प्रोडक्ट को डिस्पैच करना है, तो अगर मैनेजर को इसके बारे में पहले से ही इंफॉर्मेशन है, अगर वो अवेयर है, तब वो क्या करेगा कि वो इस सब के लिए पहले से ही प्रिपेयर होके रखेगा कि वो डिमांड को फुलफिल कर सके राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी पे और राइट मेथड से. अब आता है चॉइस एंड मोड ऑफ कैरियर. तो क्या होता है कि ए वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन टू बी मेड इज टू चूज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मतलब किस मोड से आपको प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, इसको सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है. विद द इम्प्रूवमेंट इन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, modes of transport that were not available in the traditional transportation modes in the past can be now be a preferable choice. अब होता क्या है कि जैसे इंप्रूवमेंट होता जा रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, तो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो अवेलेबल है नहीं है उस टाइम पे, इसके बारे में भी जो है चॉइस में आपको लेके चलना है, मैनेजर को देखना है. जैसे एग्जांपल में कि रेल कंटेनर जो है, रेल कंटेनर सर्विस में ऑफर ए पैकेज that is cost efficient and effective as compared to a motor transport. ऑब्वियस सी बात है कि मोटर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में रेल ट्रांसपोर्ट में क्या है, पैसे कम लगते हैं. While making a decision, the manager has to consider the service criteria that need to be met, like the delivery time,
date special handling requirement, while also taking into consideration the element of cost which would be an important factor. तो देखिए ऐसा डिसीजन लेते समय मैनेजर को ये कंसीडर करके रखना चाहिए कि सर्विस क्राइटेरिया क्या मीट करना है, जैसे डिलीवरी टाइम क्या रखना है, डेट क्या रखना है, अगर कोई स्पेशल हैंडलिंग रिक्वायरमेंट है तो उसको देखना है कि नहीं, और साथ ही साथ जो आता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जरूर देखना है, जो कि एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। नेक्स्ट आता है आपका डॉक लेवल ऑपरेशन। तो इसमें क्या होता है कि दिस इन्वॉल्व द लास्ट लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये एकदम लास्ट लेवल होता है डिसीजन मेकिंग का। दिस कंप्राइजेस प्लानिंग, रूटिंग एंड शेड्यूलिंग। इसमें क्या क्या होता है, इसमें सबसे पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है रूटिंग और लास्ट में आता है शेड्यूलिंग। एग्जाम्पल में कि इफ ए कैरियज इज बीइंग लोडेड विद डिफरेंट कस्टमर्स ऑर्डर, द फंक्शन ऑफ द डॉक लेवल मैनेजर इज टू एश्योर दैट द ड्राइवर इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट रूट एंड द लोड्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ प्लान्ड स्टॉप्स। मतलब देखिए एक एग्जांपल बहुत अच्छा है कि अगर मान लीजिए कोई कैरियर है जिसको लोड किया गया है अलग अलग कस्टमर्स के ऑर्डर से, तो जो डॉक लेवल मैनेजर है उसका फंक्शन ये है कि वो ड्राइवर को इन्फॉर्म करे कि जो सबसे एफिशिएंट रूट होगा, जिस रूट से आप जाओगे तो आपको क्या होगा कि बहुत कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगेगी, तो वो रूट बताए। साथ ही साथ जो है उस ऑर्डर में इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पर उस कैरियज में रखे कि प्लानिंग ऑफ स्टॉप्स, मतलब कहाँ कहाँ स्टॉप देना है उसके बेसिस में उसको क्या करके रखे, प्लेस करके रखे। तो ये किसके अंदर आता है, ये डॉक लेवल ऑपरेशन के अंदर आता है। अगला आता है आपका वेयर हाउसिंग। तो वेयर हाउसिंग क्या है कि वेयर हाउसिंग प्लेज ए वाइटल रोल इन द सप्लाई चेन प्रोसेस। इन टुडेज इंडस्ट्री द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स आर अंडरगोइंग ए ट्रेमेंडस चेंज। वी वांट एवरीथिंग एट आवर डोर स्टेप, दैट टू विद एफिशिएंट प्राइस। वी कैन से दैट द मैनेजमेंट ऑफ वेयर हाउसिंग फंक्शन demands a distinct merging of the engineering, IT, human resource and supply chain skill। तो देखिए ये होता है वेयर हाउसिंग से रिलेटेड। ये है आपका वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक, इसमें शो किया गया है। देखिए अलग अलग वेयर हाउसेज रिप्रेजेंट है यहाँ पर। नाउ टू न्यूट्रलाइज द एफिशिएंसी ऑफ इनबाउंड फंक्शंस, it is ideal to accept materials in an immediately storable conveyance like a pallet, case or box. For labeling the structure, tool selection and business process demand the type and quantities of the order that are processed. Further, the number of stock keeping units, जिसको अपन शॉर्ट में SKUs बोलते हैं, in the distribution centers is a crucial consideration. The warehouse management system leads the product to their storage location where they should be stored. The required functionality for the completion and optimization of receiving, storing and shipping function is then supplied. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ये कुछ रेफरेंस बुक मैंने यहाँ पर दिए गए हैं, तो आप इन बुक का रेफरेंस रिफर कर सकते हो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अब जैसा कि हर वीडियो के लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं कि क्या क्या फ्लो होता है, व्हाट आर द फ्लोज दैट ऑकर्स इन द सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट, नाउ हाउ दीज फ्लोज अफेक्ट द इफेक्टिव सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट। एक या तो उसको दूसरे फॉर्म में आप ये बोल सकते हो कि in order to have an effective supply chain and management, how these flows can be modified, या तो इन flows में आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस तरह के करके कुछ क्वेश्चंस हैं, तो you will be able to find out the answer of these question after watching this video। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप लोग को इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। In our next video we will try to find out some more topics related to supply chain। Until then, thank you very much, stay home, stay healthy।